Okay, so we are starting with a fresh topic, which is quantitative methods. Although percentage-wise, quantitative methods or QM doesn't seem to be big. What percentage was it? Just check your notes. 12%. The first class that had taken place, I had given a very elaborate introduction of all the 10 topics, what they are and their percentages. So QM comprises 12% of the exam. However, it has an indirect effect on various topics such that I take it as 20-30% of the exam because it has a direct effect on other topics. Now what we do is that given our huge focus on QM, I tend to divide it into a certain portions. For example, there is one portion which is called time value of money and discounted cash flow, DCF. Time value of money and discounted cash flow is, in a very low manner speaking, all that discussion about compound interest and annuities. Okay? The second part is basic statistics. There is no need to copy right now. A discussion is going on. I'll tell you when to copy. Basic statistics will comprise central tendency, dispersion, probability distributions. Then we have advanced statistics. Advanced statistics will comprise of sampling hypothesis, if you have heard the name. And the fourth part will be technical analysis. Technical analysis as in stock markets में charts बनता रहता है ना. If you have happened to observe sometimes the charts of stocks, the way they are moving, how are they used for the purpose of deciding which stock will go up, which stock will go down? That is technical analysis. So these are the 4 portions in which we divide the curriculum. We are going to start with this one, okay, TVM and DCF. So you may now start writing. Please write down. Quantitative methods. Quantitative methods. Okay, and within quantitative methods, the first is TVM and DCF, time value of money and discounted cash flow. Let's write short form only right now. TVM and DCF. Second is basic statistics. Basic statistics. Third is advanced statistics. Advanced statistics. And the fourth is technical analysis. Technical analysis. Okay. So the first topic is TVM and DCF. Let's give the heading. Time value of money. Time value of money, TVM. Okay. So just to ensure normal common sense instinct in this topic, I am asking you a question. The question is, there are 2 projects, project A and project B. अभी copy नहीं करना है, discuss हो रहा है.
project A and project B, which a company has to choose between, they are mutually exclusive. इसका मतलब इन दोनों में से एक प्रोजेक्ट चुनना है. आई होप प्रोजेक्ट वर्ड से कम्युनिकेट हो रहा होगा. बिग इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड इन ईदर इन ए और इन बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों में से एक. द कैश फ्लोज ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज. प्रोजेक्ट ए में द फर्म हैज टू इन्वेस्ट $500 million. फर्स्ट ईयर inflow will be 300, second year inflow will be 200, third year 100. Project B में $500 million, first year inflow will be 100, second year 200, third year 300. Two projects, A and B. Both the projects are similar in all other respect. Okay, you cannot talk about sir इसमें ऐसा हुआ तो कुछ नहीं. Ceteris paribus. Both are equal in all respects. 500 जाएगा, 300, 200, 100 आएगा, 500 जाएगा, 100, 200, 300 आएगा. Which project should we choose? मेरे को फर्स्ट वॉइस जो सुना था प्रोमिनेंट वो था ए के बारे में, एंड देन मेरे को कुछ कुछ अपोजिट सुना है बी के बारे में, यानी द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द क्लास इज इन फेवर ऑफ व्हाट? ए. ठीक है, A is the correct answer. For somebody of us who did not commit to it, A is the correct answer because अगर आपके पास 600 million आने वाला है, 600 million, 300 plus 200 plus 100, what is it? 600. अगर 600 आने वाला है तो common sense says that वो जल्दी आए तो बढ़िया या देरी से आए तो बढ़िया? जल्दी आए तो बढ़िया. अगर 600 ही आने वाला है तो जल्दी आए तो बढ़िया. तो जो प्रोजेक्ट बी है उसमें तो मेजर पार्ट ऑफ द मनी इज बैक एंडेड, इट्स कमिंग टुवर्ड्स द एंड. बट प्रोजेक्ट ए में मेजर पार्ट ऑफ द मनी इज कमिंग टुवर्ड्स द बिगिनिंग. दिस इंस्टेंट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, इन केस somebody who said B, he thought this way, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर से मतलब ही क्या है? व्हेन 600 आने वाला है यार, पूरा का पूरा 600 फर्स्ट ईयर आ जाए तो और बढ़िया. ठीक है ना. So time value of money essentially means that a rupee today is more precious than a rupee a year from now. If this seems to be a dialogue to anybody, so in that case, let me just make it easy. If I were to ask you to pay me 1000 today, मेरे को 1000 दो, और मैं तुमको आज ही 950 दूंगा. Please give me 1000 right now. I'll give you 950 back. There is nobody on this planet who will say okay, isn't it? Give me 1000, I'll give you 950 back. Why? But there would be many people who would perhaps agree that give me 950 today, I'll give you 1000 after 1 year. तुम 950 दो, तुमको 1000 एक साल बाद देंगे. इनफैक्ट मेरे को और एक बीच में बोलना चाहिए था. Give me 950 today, I'll give you 950 after 1 year. Will you agree? No. Illogical. Give me 950 today, I'll give you 950 after 1 year. Stupidity. Why would you? ठीक है, बट इफ यू गिव मी 950 टुडे, आई विल गिव यू 1000 आफ्टर 1 ईयर, यू मे अग्री. यू कैन नॉट से सर आई विल, बिकॉज 950 और 1000 के बीच में एक 500 एक्स्ट्रा मिल रहा है. व्हाट्स द परसेंटेज? कैलकुलेटर प्लीज. अरे सॉरी 50, मैंने क्या बोला था? 950 और व्हाट फिगर्स आई यूज्ड? 950 एंड 1000. सॉरी 50 एक्स्ट्रा मिल रहा है. सो 50 डिवाइड बाय 950 इज व्हाट परसेंटेज? मोर देन 5%. 50 बाय 950 मेरे एग्जाम्पल में इज व्हाट परसेंट? Exactly, please. 50 by 950 into 100 is what percent? 5.26%. 5.26%. अपने में से बहुत जन को 5.26% हो सकता है सूट नहीं करेगा. You're getting a 5.26% return. From an Indian mentality point of view, does 5.26% seem to be high or low? Low. From an Indian point of view, definitely 5.26 seems to be low. I'm talking about common sense because India में average में inflation ranges around 4.5-5%. Inflation ranges around 4.5-5%. यानी चीजों का दाम करीब 5% बढ़ता है. तो in that case, if you are giving me 950 today and I'm giving you 1000 after 1 year, actually the purchasing power of 1000 after 1 year will be the same as the purchasing power of 950 today. In case somebody did not get it, 950 से आज जो सामान खरीद सकते हैं, एक साल बाद 1000 रुपया से वही सामान खरीद पाएंगे. अल्टीमेटली मनी का तो वर्थ है सामान ना. अल्टीमेटली व्हाट गुड्स यू कैन बाय, द परचेसिंग पावर. तो इट इज सेम. एक्चुअली यू आर गेटिंग a 0% रिटर्न.
अगर 5.26% इन्फ्लेशन हो गया तो व्हाट रिटर्न हैव यू अर्नड इन 1 ईयर? जीरो, नथिंग इन टर्म्स ऑफ रियल परचेसिंग पावर, व्हाटएवर. सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है money standing at different point of time, money standing at different point of time, 200 over here, 190, sorry, 200 over here, 200 and say 30 over here, 290 over here. तीन ऑप्शन है आपको, या तो 200 मिलेगा 1 साल बाद, या 230 मिलेगा 2 साल बाद, या 290 मिलेगा 4 साल बाद. 200 1 साल बाद, या 230 2 साल बाद, या 290 4 साल बाद. इन तीनों में से एक आपको चुनना है. ठीक है, कौन सा चुनेंगे? यहां पे देखा जाए तो फाइट है. देयर इज अ फाइट, इजंट इट? नोबडी कैन से दैट्स ऑब्वियस है, ये वाला बढ़िया है. एम आई करेक्ट? 200 230 290 तीनों में फाइट है ना, दिख रहा है. जो 290 बढ़िया लग रहा है वो 4 साल बाद है, जो 200 घटिया लग रहा है वो 1 साल बाद है. दैट्स टाइम वैल्यू मनी. पहले टाइम वैल्यू मनी का फील तो आ जाए हर तरीके से. ठीक है, तो so time value of money is all that talk about interest rate. Interest rate. Interest rate is the price of money. It is the price of money. In a liberalized economy, in a non-regulated economy, the price of every commodity is determined by the free forces of demand and supply. And that's true for interest rate also. Interest rate is determined by demand and supply. ठीक है? In case somebody is not comfortable with this dialogue, कि interest rate is determined by demand and supply, तो in that case let me have this interest rate यहाँ पे ले रहा हूँ. This is demand, this is supply. At an interest rate of 3%, demand for money by the corporates, जो लोग borrow करना चाह रहे हैं, would be high or low? High. Low interest rate 3%. Indian mentality सोचो, 3% is very low. So demand for money मतलब by the corporates who want to borrow money would be what? High. So the demand for money is 10,000 crores. But those who are investing with corporates, those who are lending to corporates at 3%, they will supply less or more? Less. The compensation is not adequate. 3% बहुत कम है. So perhaps it is 6,000 crore. So at 3% there is excess demand. This is not a state of equilibrium. At a rate of 5%, perhaps the demand is equal to 8,000 crores and supply is also equal to what? 8,000 crores. Okay, equilibrium. At suppose 7%, demand is equal to 6,000 crore while supply is equal to say 10,000 crore. There is excess supply. ठीक है, तो in that case यहाँ पे तो इको का जो बेसिक बोलते हैं ना, law of demand and law of supply भी कवर हो गया. Law of demand states that higher the prices, quantity demanded falls, same cheez. But we are not talking about over here bread and butter and stuff. We are talking about money. ठीक है, it's equally applicable. So interest rate is determined by the demand and supply of money. Is that okay? Because understand, अपना जो एग्जाम है उसमें English language, dialogues, statements are irrelevant. कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, कि आपको बोलना आता है इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी. आपको फील करना पड़ेगा. मल्टीपल चॉइस पे दिख जाएगा वो कैसे फील काम आएगा. ठीक है ना? ओके, तो इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी. नाउ आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर एज एन सेवर. एक बार अपने लेंडर्स का बात करें. आप लोग अपना पैसा लगाना चाह रहे हो. यू आर गोइंग टू लेंड मनी, यू आर गोइंग टू बाय अ शेयर, यू आर गोइंग टू बाय अ बॉन्ड, यू आर गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, यू आर गोइंग टू बाय a real estate, you are going to buy a commodity. If you do any of these things, जो मैंने बोला अभी fast, buy a share, buy a bond, buy a commodity, buy a real estate, you are parting with money. You are parting with what? Money. Okay? You will not part with money unless and until you expect a certain rate of return. ठीक है? That rate of return is interest. That rate of return is interest. So in that case, given a choice between a government bond versus another government bond. There are two government bonds. Government bond A, government bond B. दोनों में difference क्या है सुन लो. Before I speak that, by chance bond clear नहीं हो रहा है तो bond का मतलब समझना. एक बार 1 year का bond है, कितने साल का? 1 year का. If you pay a certain amount right now, you will get that amount plus something a year from now. Is it okay? 1 year bond है.
1 साल बाद आपको उससे ज्यादा मिलेगा। 1 ईयर बॉन्ड है। बॉन्ड ए इज अ इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड। व्हाट बॉन्ड? इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड। द वर्ड इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड itself generates some instincts, ठीक है। बॉन्ड बी has no such inflation protection. Bond B is a bond. It does not provide any protection against inflation. Protection against inflation का मतलब समझ गए होंगे। As a lender or investor, everybody is affected by inflation because you are lending your money today and that money has a certain purchasing power. You can buy certain goods, but when you get the money later, at that time, prices of goods may go up. ठीक है, यू डोंट नो बाय हाउ मच, देयर इज अनसर्टेनिटी, बट इफ इट गोज अप टू मच, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, यू विल रिपेंट यार क्यों पैसा फालतू में दिया अपने कमती इंटरेस्ट पे, देखना इन्फ्लेशन ही ज्यादा हो गया। वो जो अनसर्टेनिटी आपके माइंड में चल रहा है, दैट इज परचेजिंग पावर रिस्क। व्हाट रिस्क? परचेजिंग पावर रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क, ठीक है ना। बॉन्ड ए, गवर्नमेंट बोल रहा है जो लोग भी ये बॉन्ड बाई कर रहे हैं उनको इन्फ्लेशन का चिंता नहीं करना है, बिकॉज इट इज व्हाट? इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड। यानी if I am the government, I am saying that please, when you are lending to me via bond A, you don't worry about inflation, because whatever inflation takes place in the year, which I also don't know, whatever inflation will take place, I will give you that inflation together with some return. इन्फ्लेशन जो भी हुआ मैं सेपरेटली दूंगा, तो प्लीज अभी मन में ब्याज सोचते समय यार कितना रिटर्न मांगे, इन्फ्लेशन का मत बोलना, ठीक है, कि इन्फ्लेशन हो गया तो डोंट टॉक अबाउट इट, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू इन्फ्लेशन सेपरेटली ना। बट बॉन्ड बी में गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? यू गिव मी अ सर्टेन मनी, आई गिव यू अ सर्टेन मनी प्लस समथिंग एक्स्ट्रा आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो एंड रिमेंबर, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है वो तुम मन में सोच लेना, मतलब मेरे को मत बोलना कि सर इन्फ्लेशन इतना हो गया, आपको ज्यादा देना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी? तो इन दैट केस किस बॉन्ड से मन में सोचते हुए यू विल डिमांड अ हायर रिटर्न? आप मन में सोच रहे हो यार 1000 रुपया देते हैं, इंटरेस्ट चाहिए, तो किस बॉन्ड से यू विल डिमांड अ हायर रिटर्न? बी से, ऑब्वियस है, ठीक है। बी से यू विल डिमांड अ हायर रिटर्न, दोनों गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक है। बी से यू विल डिमांड अ हायर रिटर्न बिकॉज वहां पे तुम्हारे मन में इन्फ्लेशन भी आना चाहिए। तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि यार इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से 6% होने वाला है और उसके अलावा मैं अपना पैसा सैक्रिफाइस कर रहा हूं, 2-3% तो और चाहिए। तो मन में क्या आ गया? 8 लो। जबकि बॉन्ड ए में क्या आया? इन्फ्लेशन का चिंता है नहीं यार, तो 2-3 क्या आया? 2-3%। थिंक इंस्टिंक्टिवली, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड ए से जो रिटर्न है, बॉन्ड ए से जो रिटर्न है उसको अपने बोलते हैं रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न, 2 एडजेक्टिव्स यूज किया है, एक तो रिस्क फ्री और एक रियल। रिस्क फ्री और एक रियल। फर्स्ट वाला तो इतना इजी है समझने में कि मैंने उसका कोई इंट्रोडक्शन बांधा ही नहीं। रिस्क फ्री, यू आर लेंडिंग टू द गवर्नमेंट, यू आर लेंडिंग टू द गवर्नमेंट, तो बेसिकली रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज देयर और नॉट देयर? Not there, because the government has printing power. Okay, it can print money and return it back. तो गवर्नमेंट का डिफॉल्ट का स्कोप कम है, ऑल्दो एक्सेप्शनल केसेस में मेनी गवर्नमेंट्स हैव डिफॉल्टेड, ठीक है। तो खासकर टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, बट देन एक्सेप्शनल केसेस से अपने नॉर्मल रिदम क्लास का स्पॉइल नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक बार ये माने, हाँ सर जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट का बॉन्ड है वो एक तरह से रिस्क फ्री है, ठीक है ना, बिकॉज व्हाई वुड द गवर्नमेंट डिफॉल्ट? इफ द गवर्नमेंट डजंट हैव मनी इट कैन प्रिंट द सेम ना, सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब रिस्क फ्री। रिस्क फ्री मतलब नो रिस्क। रियल मतलब विदाउट इन्फ्लेशन। रियल मतलब विदाउट इन्फ्लेशन, ठीक है। वाई रियल? बिकॉज सर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है ना, इन्फ्लेशन का तो प्रोटेक्शन है, तो तुम इन्फ्लेशन का प्रीमियम क्यों मांग रहे हो? नहीं मांगोगे तुमको तो हम बोल रहे हैं इन्फ्लेशन अलग से दे देंगे, तुम छोड़ के बताओ कितना चाहिए। तो रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न इज सपोज 3%। हाउ मच? 3%। तुमने मन में सोचा कि यू हैव अ सर्टेन मनी, 1000 रुपीज तुम्हारे पॉकेट में, कैन यू कंज्यूम इट? Yes, you can buy goods and services. You have 1000 rupees. When I asked, can you consume it? Yes, sir. I can buy goods and services today. I can use it for consumption. If you lend it, you are going to sacrifice consumption. You are going to sacrifice consumption. Every investment, no exception. Every investment is a sacrifice of consumption. Every investment is a sacrifice of consumption. Human beings by nature would prefer current consumption as compared to future consumption. Anybody would like to consume today. But when that person is being asked to defer consumption, defer, D-E-F-E-R, defer, he will demand a certain rate of return, otherwise he will not. That return that you demand for the sacrifice of current consumption is known as
रिस्क फ्री रियल रेट, रिस्क फ्री रियल रेट, ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग कंजम्पशन, ठीक है ना। जबकि ये जो रेट है नीचे वाला, दिस इज रिस्क फ्री नॉमिनल रेट, रिस्क फ्री नॉमिनल रेट, रिस्क फ्री नॉमिनल रेट, नॉमिनल मतलब इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, नॉमिनल मतलब इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, एंड सपोज दैट इज 3 + 5 इक्वल टू व्हाट, 8%. 5% is our inflation forecast, inflation forecast. So 3% चाहिए प्लस 5 क्या चाहिए, 8. ठीक है, तो रियल मतलब विदाउट इन्फ्लेशन, नॉमिनल मतलब विथ इन्फ्लेशन. ये लोगों को इजीली बैठ जाता है, ठीक है ना. बट कब कौन सा यूज करना है वो क्लियर हो जाए. एक तो क्लियर हो चुका है, व्हेन देयर विल बी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, व्हेन देयर विल बी इन्फ्लेशन protection, you are investing in a certain place but you are protected against inflation, which rate is to be used, real or nominal? Real. अगर inflation protection है तो inflation 5% नहीं चाहिए, then we require real rate. but अगर inflation का protection नहीं है, you are going to suffer inflation, तो अपने को nominal rate चाहिए. क्या rate चाहिए? Nominal. मैं एक पोर्शन कंप्लीट होने के बाद अपने यहाँ पे डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है. तो योर ऑब्जेक्टिव राइट शुड बी दैट वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ठीक है. तो डू नॉट फॉरगेट अबाउट, हमारे डू नॉट वरी अबाउट रिटेंशन. तो रियल नॉमिनल क्लियर हो गया. कोई अगर तुमको बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं घुमा के बता रहा हूं, किस बॉन्ड का बात कर रहा हूं, बताना ए या बी का. अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, बताना कौन से बॉन्ड का बात हो रहा है. ध्यान रखना, ए में इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है, बी में इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है. गवर्नमेंट का बॉन्ड है जो आपको 1 साल बाद 1000 देगा. गवर्नमेंट का बॉन्ड है जो आपको 1 साल बाद 1000 देगा. आप अभी कुछ दो, वो कुछ का बात नहीं कर रहे हैं, ऑफकोर्स 1000 से नीचे है. आप अभी कुछ दो, वो 1000 से नीचे है, श्योर है. गवर्नमेंट आपको 1000 देगा. क्या देगा? 1000. 1000 माने 1000, नथिंग मोर. 1000 माने 1000, नथिंग मोर. गवर्नमेंट इज सेइंग इट विल गिव यू 1000, दैट्स इट. कौन सा बॉन्ड? बॉन्ड बी. बॉन्ड बी ना. गवर्नमेंट बोल रहा है 1000 देगा. भाई अब तो सोच ले मन में, तो इन्फ्लेशन नहीं देगा अलग से. कहां बोल रहे हैं देगा? Inflation protection is a speciality which has to be spoken. If the sum is silent, you cannot presume inflation protection. जो सब में लिखा है नॉर्मल बॉन्ड माने बॉन्ड, बॉन्ड माने क्या? इट इज नॉट इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड. इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड जो है वो चिल्ला के बोलना पड़ेगा क्वेश्चन में. नहीं बोला इसका मतलब देयर इज नो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन. द सम इज साइलेंट, नथिंग. आपको 1000 मिलने वाला है, आपको 1000 मिलने वाला है, तो आपको कितना चाहिए? 3 या 8? 8% इज ओके. 8% का मतलब आपको 1 रुपी के बदले 1.08 चाहिए. इज इट ओके? 1 रुपी के बदले 1.08 चाहिए. उल्टा बोलूं तो x रुपीस के बदले x इंटू 1.08 चाहिए. इज 1.08 ओके विथ यू ऑल? बिकॉज नॉर्मली जो हैबिट है लोगों का करना, x प्लस 8% ऑफ x. इफ आई एम गिविंग x, तो x प्लस 8% ऑफ x. बट उसका स्पॉन्टेनियस फीलिंग क्या है? x इंटू 1.08. x इंटू माने ये जो मैथ्स में ये जो 1 प्लस आर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हारा एक जनरल पिकअप 1 प्लस आर का. आई विल कॉल इट इंटरेस्ट रेट फैक्टर. इंटरेस्ट रेट फैक्टर. थोड़ा सा 2 मिनट टाइम वेस्ट कर रहा हूं, बट एक बार रिक्वायर्ड है. इंटरेस्ट रेट फैक्टर बोलते जाना, यानी 1 रुपया का फ्यूचर वैल्यू. 1 रुपया का फ्यूचर वैल्यू मैं इंटरेस्ट रेट बोल रहा हूं, ठीक है. वी आर जस्ट डूइंग अ 1 मिनट एक्सरसाइज. कुछ वैल्यू एडिशन बीच में होने वाला है. 7%, 1.07, 24%, 1.24, 240%. रॉन्ग हो गया है, वापस से. 7%, आई सेड 1.07, 24%, 1.24, 24%, 1.24, वहां तक राइट जा रहा था. 240%, 3.4, 3.4, 3.4. ये जो शर्मा शर्मी होता है ना, खराब रेट बोलने से 240% डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना, हाजमोला चाहिए, ठीक है. बट सम्स पे तो होगा. यू विल बाय अ शेयर विच विल गिव 240% रिटर्न, ठीक है. एक बार ये क्लियर कर दे. इन केस इलॉजिकली पढ़ाते रहते फॉर्मूला वाइज, तो वी वे डूइंग दिस 1 प्लस आर बाय 100. जैसे जब आपको बोला 7%, वी वे डूइंग 1 प्लस 7 बाय 100. व्हाट इज 7 बाय 100? 0.07. यू सेड 1.07, इजंट इट? तो लास्ट में बोला 240%, तो 1 प्लस 240 बाय 100. व्हाट इज इट? 2.4 प्लस 1 व्हाट? 3.4. खराब तरीका ये बताने का. ये जो तरीका बताया मैंने, इससे इंस्टेंट बढ़िया तरीका क्या है? अगर कोई चीज 240% रिटर्न है, तो इसका मतलब अपना पैसा 340% बन जाएगा. बिकॉज जो पैसा है मेरा वो तो 100% है.
ठीक है, अगर कोई चीज में 240% रिटर्न है, मतलब वो पैसा 340% बन जाएगा. व्हाट डज 1 प्लस आर शो? आपका पैसा कितना टाइम्स बन जाएगा? कितना? लुक एट दिस टोन, द टाइम्स. योर मनी विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स ऑफ व्हाट इट इज टुडे? 1.07 एक्चुअली टाइम्स. ठीक है सर, वॉट एवर मनी इज दैट विल बिकम 1.07 टाइम्स, 1.24 टाइम्स, तो इन दैट केस 3.4 टाइम्स. ठीक है, वॉट एवर वे यू गेट इट. आई एम कंटिन्यूइंग माई लेक्चर. 10% का मतलब 1.1, 20% का मतलब 1.2, 25% का मतलब 1.25, -5% का मतलब 0.95. फिर से शर्माना नहीं है. -5% है 0.95, मतलब आप जो रुपया लगा रहे हो वो 5% डूब जाएगा. 5% डूब जाएगा तो बचेगा क्या? 95%. ठीक है, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशंस में थोड़ा सा एक गट फीलिंग चाहिए होता है. उसके लिए नोबडी कैन डू ऑल दिस डेकोरेशन इन द एग्जाम हॉल. इनफैक्ट इन द एग्जाम, लेट मी एक्सप्लेन टू यू, यू गेट एन OMR शीट. OMR शीट मिलेगा ना आंसर मार्क करने के लिए. उसके अलावा यू गेट नथिंग. यू डोंट हैव एन एक्स्ट्रा शीट टू वर्क. कोई रफ शीट ये वो कुछ भी अलाउड नहीं है. हाँ, क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर वो तो मिलेगा. तो अब उसके अंदर गंदगी कर सकते हैं, होता है ना, स्क्रिबल करना, रबर करना, तो फिर रबर ही करते रह जाएंगे वहां पे. यू अंडरस्टैंडिंग? 120 क्वेश्चन में कहां कहां लिख के रबर करेंगे. तो अपने क्लास में पढ़ाने का जो स्टाइल होता है इज मन में चल रहा है सारा कैलकुलेशन और दूसरा कैलसी पे चल रहा है. ठीक है, वी टेंड नॉट टू यूज एनी वर्किंग एट ऑल. दैट इज द स्मार्ट प्रेपरेशन. यू विल फाइंड इट हैपनिंग एज आई डू मोर एंड मोर कैलकुलेशंस विथ यू. ठीक है, तो अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया, फैक्टर. क्या? फैक्टर. फैक्टर मतलब 1 प्लस आर. क्या? 1 प्लस आर. आर ऑफकोर्स मैं डेसिमल में बोल रहा हूं. ठीक है ना, व्हाटएवर इट इज. थोड़ा ट्रैक चेंज हुआ, वापस से बैक ट्रैक करते हैं. ये क्वेश्चन चल रहा था, गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू 1000 आफ्टर 1 ईयर. हाउ मच? 1000. 1000 मीन्स 1000. यू अंडरस्टूड? इट्स अ इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड और इट्स अ नॉर्मल बॉन्ड. नॉर्मल बॉन्ड. ठीक है ना. तो इन दैट केस यू वांट 8% रिटर्न. 3 + 5 याद होगा. तो x के बदले यू वांट x into 1.08. दिस मीन्स x into 1.08 इक्वल टू व्हाट? 1000. सो x equal to what? 1000 divide by 1.08. यह है ना. 1000 divide by 1.08 क्या आ रही है? 925. बताओ प्लीज. 0.93. I'll come to the calci stuff later, पर थोड़ा बहुत जो सिंपल कैल्सी यूज करे वो तो बताते जाओ. 925.93 is the answer. ठीक है. In English language, what would we say? The 1000 which was standing at 0 or at 1? 1. 0 माने आज. 0 माने आज. नंबर लाइन. 0 माने आज, 1 माने एक साल बाद. It is wrong for anybody to describe 1 as the first year. When you say first year, you are speaking about a period of time. जबकि 1 is a point of time. 1 is it is the end of the first year. What is 0? Is 0 the beginning of the first year? Yes. 0 is the beginning of the first year. So don't call 1 as the first year. 1 is the end of the first year. Be precise in terms of what you talk and what you think. ठीक है ना. तो 1 पे 1000 खड़ा था. 1 पे 1000 खड़ा था. Let us call it future value. What value? Future value. अपने को इसका वैल्यू आज निकालना था. That means present value. What value? Present value. And that present value के लिए अपने 1000 में से 8% मिलाना है कि हटाना है? हटाना है, because 1000 तो 108% है. What is 1000? 108%. तो हटाना है, इसलिए we divide by 1.08 and you get 925 point something whatever आया. This process should be called compounding or discounting. Discounting. Okay. आप जो ब्याज का इफेक्ट है वो 1000 में से हटा रहे हो. यू आर रिमूविंग द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट एंड यू आर फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू इज अ डिस्काउंटिंग प्रोसेस. व्हाट प्रोसेस? Discounting process. And hence the rate which is used to find out the present value, on the board, what rate? 8%. The rate which is used to find out the present value is known as discount rate. What rate? So interest rate का financial dictionary का meaning discount rate. इंटरेस्ट रेट माने डिस्काउंट रेट. इंटरेस्ट रेट माने डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट को वैसे नहीं सोचे जो अपने कमोडिटीज बाई करने जाते हैं तो 20% डिस्काउंट होता है ना, वो अलग है. बिकॉज वो अगर बात करें से 1000 का एक सामान खरीदने गए और 20% डिस्काउंट है, वो 20% तो 1000 पे होता है.
समझ गए? जबकि यहां पे जब 1000 को पुल कर रहे हैं तो 1000 इज 120%. वी आर डूइंग 1000 डिवाइड बाय व्हाट 1.2. ठीक है? तो डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट. ठीक है? तो इंटरेस्ट रेट का 3 नाम है. वन इज इट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. इट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. व्हाट डू यू रिक्वायर इफ यू आर पुटिंग मनी समवेयर? Number 2, it is the discount rate. It is the discount rate. Number 3, it is the opportunity cost. It is the opportunity cost. If you invest at one place, और उल्टा बोलते हैं, if you consume your money, आपके पास 1000 है, you decided to consume, but you could have earned 8%. You could have earned 8%. You are losing the opportunity to earn 8%. If you consume, you lose the opportunity to earn 8%. एक तरह से 8% is an opportunity cost. It's an opportunity cost. ठीक है? तो इंटरेस्ट रेट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इंटरेस्ट रेट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. इंटरेस्ट रेट इज द डिस्काउंट रेट. ठीक है? चेक कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं. इसमें कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए बताना है. 3 वर्ड्स है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. 3 वर्ड में से एक आंसर होगा. क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए. तीनों का फील कर लो. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मेरे को कितना रिटर्न चाहिए हिंदी में. डिस्काउंट रेट, पैसा एफवी खड़ा है, एफवी, उसका प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए डिस्काउंट रेट चाहिए. डिस्काउंट रेट वहां पे काम आया था, टू डू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर वैल्यू. एंड तीसरा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है? ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी में जो लूज कर रहे. ठीक है? तो यू प्लान टू ट्रैवल टू यूके आफ्टर 1 ईयर. नेक्स्ट ईयर समर्स यूके आप जाओगे. And you have sorted out that the amount required for the travel would be rupees 12 lakhs. How much? 12 lakhs. All your shopping, everything 12 lakh लगेगा. Next year summers में UK जाओगे तो in that case अभी अपने कितना पैसा साइड करें. साइड करें का मतलब उसको अलमारी में नहीं रखेंगे. उस पैसे को एक 1 ईयर के बॉन्ड में लगा देंगे. 1 ईयर के बॉन्ड में लगा देंगे जिससे वो 12 लाख बन जाए. जिससे वो 12 लाख बन जाए. वो जो रेट यूज होगा, ठीक है, वो रेट इज विच रेट? डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट. वैसे तो तीनों चीज सेम है. वो रिक्वायर्ड रेट भी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है. बट जब बात आई गया तीनों में डिस्टिंग्विश करने का, जब भी एक फ्यूचर अमाउंट दिया हुआ है और अपने पूछ रहे बताओ उसके बदले आज कितना साइड करना पड़ेगा, यानी यू आर फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर वैल्यू. Then the rate which is being used is called what? Discount rate. It is not a very big thing, but मेरे को तो curriculum for the CFA curriculum I have to teach what is there ना. तो इनका जो first learning outcome statement है LOS, ठीक है, वो LOS है describe interest rate as required rate of return, discount rate and opportunity cost. I am 99.99% sure that this LOS is not testable. बिकॉज दिस इज लाइक टाइम पास. होता है ना, चालू किया तो शुरू में एक बार LOS दे दी है, बिकॉज ये कोई ग्रेट थिंग नहीं है. बट अपने को तो हर एक चीज को करते हुए आगे बढ़ना है ना. तो डिस्काउंट रेट कब वर्ड यूज करते हैं? जब कोई भी चीज FV का क्या निकालते हैं? PV. ठीक है? तो जबकि जो शुरू में टोन चल रहा था ना, ये जो टोन चल रहा था, हैव अ लुक, ये जो टोन चल रहा था, 2 बॉन्ड है, बॉन्ड A बॉन्ड B. बॉन्ड A इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है, बॉन्ड B जो है वो क्या है? नॉर्मल बॉन्ड, और दोनों गवर्नमेंट बॉन्ड है. तुम बताओ तुमको क्या रिटर्न चाहिए? तो तुम्हारे मन में चला सर गवर्नमेंट बॉन्ड है, रिस्क तो है नहीं, आई डोंट रिक्वायर रिस्क प्रीमियम, आई डोंट रिक्वायर रिस्क प्रीमियम. फिर चला सर बॉन्ड है तो इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है, आई डोंट वांट इन्फ्लेशन प्रीमियम, आई जस्ट वांट द क्या बोलते हैं कंजम्पशन के बदले जो सैक्रिफाइस हो रहा है. एक तरह से ये जो आपने सोच साच के बोला, दिस वाज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. व्हाट वाज इट? व्हेन यू थिंक अबाउट हाउ मच शुड यू डिमांड. ठीक है? तो यार ये है, ये मेरे को इतना और चाहिए, इतना और चाहिए, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब होगा ना? जो कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पर्टिकुलर स्टॉक, इट्स अ सीमेंट स्टॉक. व्हाट स्टॉक? सीमेंट स्टॉक. सीमेंट जो कि विद अस, इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक. व्हाट स्टॉक? लार्ज कैप मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस इज मोर देन 50,000 crores. इट्स अ लार्ज कैप सीमेंट स्टॉक एंड दैट स्टॉक, दैट कंपनी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ इंडिया. विच पार्ट? साउथ इंडिया. तो मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक उस कंपनी का दिया. नंबर 1 वो सीमेंट कंपनी है, नंबर 2 वो लार्ज कैप है, नंबर 3 वो साउथ इंडिया में. ठीक है? तो यू कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 22% इफ यू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक. 22% आप कमा सकते हो एक साल में.
If you put 100, it will become 122, it seems. Now if you are thinking about another stock, एक दूसरा सीमेंट स्टॉक है, दूसरा सीमेंट स्टॉक है जो कि लार्ज कैप है और जो कि साउथ इंडिया है, तो इन दैट केस वो स्टॉक का बता रहा हूं, अगर वो स्टॉक बाई करते हो तो क्या होगा सुन लेना। आज से 1 साल बाद तुम्हारा फोरकास्ट है दैट कंपनी विल पे अ डिविडेंड ऑफ 27, हाउ मच, 27 रुपीज डिविडेंड मिलेगा। यू बिकम अ शेयर होल्डर टुडे ना, यू विल गेट 27 रुपीज डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, एंड यू एक्सपेक्ट द शेयर प्राइस विल बी 2040, हाउ मच, 2040 ईयर फ्रॉम नाउ। 1 साल बाद शेयर का दाम 2040 होगा, उसको बेच सकते हैं और अपने को डिविडेंड मिलेगा 27। तो इन दैट केस अपने सोच रहे हैं कि इस शेयर के बदले अपने आज क्या पे करें, व्हाट शुड बी पे टुडे फॉर द शेयर प्राइस टुडे। तो ऑब्वियसली ये रेट डिस्काउंट रेट है, नो डाउट, बट जिस तरह से आप निकाल रहे हो, सपोज वो पीवी नहीं पूछा है, वो पूछा है सिंस सिमिलर शेयर इज गिविंग यू 22%, देयरफॉर दिस शेयर से आल्सो यू शुड डिमांड 22%। सिंस अ सिमिलर शेयर इज गिविंग 22%, यू शुड डिमांड फ्रॉम दिस शेयर हाउ मच, 22%। पर ये जो इस तरह से सोचे ना, सिंस ये इतना दे रहा है तो यहां भी मेरे को इतना चाहिए, ये जो सोचने का तरीका है, इट इज व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost, because the opportunity cost of investing in this share is losing out the investment in that share ना, तो therefore you will demand 22%। यार मेरा opportunity cost 22% है, मैं 22% से कम तो नहीं लूंगा। हाँ, उसका जब पीवी कर रहे हैं तो वही 22% को क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट का 3 नाम है, एक है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक है क्या, डिस्काउंट रेट, और एक क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। LOSA इंटरेस्ट रेट इंटरप्रिटेशन, LOSA हो गया इंटरेस्ट रेट इंटरप्रिटेशन। इंटरेस्ट रेट इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर point number 1, interest rate is the price of money. Interest rate is the price of money. Interest rate is the price of money. Full stop. It can be interpreted in 3 ways. It can be interpreted in 3 ways. It can be interpreted in 3 ways. Dash. Next line. First arrow. Required rate of return. Required rate of return. Second arrow. Discount rate. Third arrow, opportunity cost. Point number 2. Point number 2 में first bullet, given the risk involved and other factors, given the risk involved and other factors, comma, I will make this investment, I will make this investment, I will make this investment only if I get a return of, I get a return of at least 14%. ये टोन लिखा ना मैंने, instead of describing फालतू में required rate of return in English language, I thought to share it via a tone. यार
इतना रिस्क को देखते हुए, ये सब चीजों को देखते हुए मेरे को 14% रिटर्न चाहिए. जब तुम ये बोल रहा है, यू आर सेइंग व्हाट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. तो आई वाज ट्राइंग टू सजेस्ट द टोन ऑफ द फर्स्ट वन. करेक्ट. नेक्स्ट बुलेट. नेक्स्ट बुलेट. If I need 40,000 1 year from now, if I need 40,000 1 year from now, comma, the amount I need to invest today, the amount I need to invest today equal to 40,000 divided by 1.14. 40,000 divided by 1.14. Yes, please. 40,000 divided by 1.14. क्या? 3508 7.7. 3508 7.7. 3508 7.7. ठीक है. तो ये जो एक मिनट, यानी ये जो 14% था यहां पे, ठीक है, लिख देते हैं डिस्काउंट रेट. एरो देके मेंशन कर देना. फर्स्ट वाले भूल गया था. ये जो 14% था, ये क्या था? रिक्वायर्ड रेट. ठीक है. 14 required rate, 14 discount rate, depending upon the style in which, the toning in which we are using it. And third bullet, I can earn 14% elsewhere. I can earn 14% elsewhere, comma, so I need 14% from this investment. I need 14% from this investment. I can earn 14% elsewhere, so I need 14% from this investment. ठीक है. तो यहां पे जो 14 हो गया, वो क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. तो डेलिबरेटली मैंने डिफाइन नहीं किया तीनों को, जस्ट तीनों का एक टोन और फील जनरेट किया. दैट्स सफिशिएंट बिकॉज आई सेड इसका टेस्टेबिलिटी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. ठीक है. LOS A का. करेक्ट. सो वी शुडंट वेस्ट एनी टाइम इनटू व्हाट इज अंडरस्टूड एंड विच इज लेस लाइकली टू बी टेस्टेड. नेक्स्ट, LOS B. LOS B. Okay, by the way, how many people are carrying the QM book right now? ठीक. ओके. तो एटलीस्ट मेरे को दिख रहा है कि ज्यादातर लोग के पास है. तो अगर किसी के पास नहीं भी है तो बगल बगल से शेयर हो जाएगा. ठीक है ना. LOS B. तो यू मे जस्ट ओपन द बुक. बुक ओपन कीजिए एंड बुक में यू विल फाइंड पेज नंबर 1 में पेज नंबर 1 में यू मे पास ऑन वन बुक टू हिम प्लीज. पेज नंबर 1 में आपको दिखा LOS A to F है. पेज नंबर 1 में LOS A to F. रिक्वेस्ट यू टू जस्ट शेयर द बुक इन केस किसी बेंच में बुक नहीं है तो आगे पीछे से शेयर कर ले. या LOS A to F आप लोग को दिख रहा होगा ना. तो LOS A मैंने करवाया. इंटरप्रेट इंटरेस्ट रेट एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट रेट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसका कमांड वर्ड क्या था? इंटरप्रेट. व्हाट वाज द कमांड वर्ड? यू अंडरस्टैंड. इसका मतलब इससे कोई सम्स एक्सपेक्टेड नहीं है. दे जस्ट वांटिंग टू जनरेट द फील. डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स रिक्वायर्ड? ओके. एंड दिस एंड दैट. LOS B, एक्सप्लेन एन इंटरेस्ट रेट एज द सम ऑफ रियल रिस्क फ्री रेट, जो मैं वर्ड यूज कर रहा था ना, and premiums that compensate investors for the frequency of compounding. ये misprinting हो गया. Because and premiums that के बाद जो बाकी पार्ट है कैंसिल करो ना. premiums that के बाद जो बाकी पार्ट है LOS पे कैंसिल करो. हाँ ठीक है, आपका करेक्ट हो गया होगा.
ठीक है, मेरे पास जैसे जो वर्जन है उसमें, एक मिनट, क्या कैंसिल कराया मैंने? मेरे पास जो बुक है उसमें लिखा हुआ है प्रीमियम्स दैट कंपेंसेट इन्वेस्टर्स फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। अगर ये लिखा हुआ था तो कैंसिल करना है, नहीं आपके करेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आप लोग के? प्रीमियम्स दैट कंपेंसेट इन्वेस्टर्स, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, मैच्योरिटी एंड डिफॉल्ट रिस्क। ओके, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, मैंने जरा सा चेंज होगा, वो मिस प्रिंटिंग है, पुराने बुक में अभी नया एडिशन करेक्ट हो गया होगा हम लोग ने जो भेजा। ठीक है, तो लोग ठीक कर लेना, नो इश्यूज। मैं अभी समझा रहा हूं एलओएस भी क्या होता है। आई वाज जस्ट टेलिंग यू दैट इस तरह से एलओएस है। ठीक है, तो दीज आर दी एलओएस। कम बैक टू द कॉपी प्लीज। अब डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज पूरा एक्सप्लेन हुआ नहीं था उस समय। अब ठीक से सुनो, ठीक से सुनो। पहले डिस्कस हो रहा है, लिखना नहीं है अभी, डू नॉट राइट। कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इन द सेंस दैट ये हर टॉपिक में काम आएगा। ठीक है, एंड इनफैक्ट इट इज सो सरप्राइजिंग, मेरा लास्ट क्लास भी चलता रहता है ना, तभी भी कभी कभी आई हैव टू मेक यू रिमेंबर द फर्स्ट क्लास ऑफ टीवीएम वी डिड एंड वी हैड हाउ मेनी कंपोनेंट्स। मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एलओएस है, वेरी फंडामेंटल। लेट्स गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू इट। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है उसके लिए यू नीड टू थिंक अबाउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंटरप्रिटेशन। कौन सा इंटरप्रिटेशन? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो आई सेड इंटरेस्ट रेट में नंबर वन वी हैव समथिंग कॉल्ड आरएफ रियल। आरएफ रियल फुल फॉर्म रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न। रियल का मतलब विदाउट इन्फ्लेशन। वाई विदाउट इन्फ्लेशन? बिकॉज देर इज सम इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन और देर इज नो इन्फ्लेशन। ईदर देर इज नो इन्फ्लेशन, ऐसा इकोनॉमी जहां पे इन्फ्लेशन नहीं है, और इवन इफ इन्फ्लेशन इज देयर, देर इज सम इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। ठीक है ना? नंबर टू, इन्फ्लेशन प्रीमियम। व्हाट प्रीमियम? इन्फ्लेशन प्रीमियम। कि सर इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी देयर एंड देर इज नो प्रोटेक्शन, सो वी विल सफर, तो आई विल डिमांड 3+5। ये 3 चल रहा था, 5 चल रहा है। नंबर 3, risk premium. Risk premium. If there is risk, in that case we hate risk. ठीक है, but we are ready to take risk provided there is some extra return. So risk premium is the extra return required for bearing risk. Inflation premium is the extra return required for suffering inflation risk. ठीक है, but if there is no inflation, there is no risk premium, then we have what? Risk free real rate. इसका नाम क्या था इन दोनों को मिला के? ये 1 और 2 को मिला के नाम क्या था? रिस्क फ्री नॉमिनल रेट। रिस्क फ्री नॉमिनल रेट, याद होगा। नॉमिनल आते ही मतलब इन्फ्लेशन प्रीमियम शामिल हो गया। अगर अपने 1 और 3 को मिला देना, 1 और 3 को, तो रेट जो आएगा दैट इज रियल और नॉमिनल। 1 और 3 को मिलाएं तो रेट इज रियल और नॉमिनल। रियल, इन्फ्लेशन लेना नहीं है, बट द रेट इज रिस्क फ्री और रिस्क एडजस्टेड। रिस्क एडजस्टेड, ठीक है, रिस्क एडजस्टेड। सपोज लेट मी डिनोट दिस वे, रिस्क एडजस्टेड रियल रेट। रिस्क एडजस्टेड रियल रेट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है ना रिस्क फ्री रियल रेट, वो तो हर इंटरेस्ट रेट में दुनिया में आएगा, क्योंकि वेन एवर यू इन्वेस्ट आर यू सैक्रिफाइसिंग कंजम्पशन? यस, तो रिस्क फ्री रियल रेट तो आना ही है, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, बट इन्फ्लेशन प्रीमियम आ भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है वेदर अपने इन्फ्लेशन सफर कर रहे हैं कि नहीं। रिस्क प्रीमियम आ भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करता है कि अपने रिस्क सफर कर रहे हैं कि नहीं। यानी बाकी दोनों कंटिंजेंट है, एंड सम्स का करेक्ट होना विल डिपेंड अपॉन वेदर यू आर टेकिंग द करेक्ट रेट्स और नॉट। ठीक है, जस्ट टू इंश्योर दैट मैं पैरेलली नंबर्स बोलते रहूं, अपने अलग अलग मान रहे हैं कि ये 3 है, ये 5 है और ये 2 है। सही है, एक बार जिससे कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर होगा। 3, 5, 2। ठीक है, तो 2 में कंफ्यूजन होगा बिकॉज 3 + 2 इज मेकिंग 5। 3, 5 एंड सपोज दिस इज 4। नाउ इट्स ओके, 3, 5, 4। इज इट ओके? तो व्हाट इज द आंसर फॉर द रिस्क एडजस्टेड रियल रिटर्न? 7%। रिस्क एडजस्टेड रियल, सही है, एंड रिस्क फ्री नॉमिनल 8%। रिस्क फ्री रियल 3%। करेक्ट है? ठीक है ना? ओके, फॉर द पर्पस ऑफ दिस LOS, there are 3 types of risk.
मेरे को बोलना पड़ा फॉर द पर्पज ऑफ दिस LOS बिकॉज एट डिफरेंट प्लेसेस रिस्क इज डिफाइंड differently. Somewhere we go to more granular and there could be 50 types of risk. For the purpose of this LOS, there are 3 types of risk. They are एक तो default risk. Which risk? Default risk. और अपने मन में यही चल रहा था अभी. Risk जब बोल रहा था तो मन में क्या चल रहा था? Default. Second है liquidity risk. Liquidity risk. और third है maturity risk. Maturity risk. If we can understand the second and the third one in a unforgettable fashion, मतलब एक होता है मेरा सुन लिया आपको समझ में आ गया भूल गए, और एक होता है कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे वैसा वाला, तो इट्स अ वेरी ग्रेट एसेट फॉर टॉपिक्स एंड स्टडीज टू कम. लिक्विडिटी रिस्क एंड मैच्योरिटी रिस्क. तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू इंश्योर दैट आपके इंटरनलाइज हो जाए. लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है the fact that there is a lack of liquidity. There is a LACK, lack of liquidity. We love liquidity. If liquidity is not there, I don't like it. And if I don't like it, I would demand a higher return. Why would I invest in an environment जहाँ पे liquidity is not there? So what is liquidity? Liquidity has 2 elements. Number 1 is speed, time. Number 2 is fair price. Number 2 is what? Fair price. If you can buy or sell, that is invest or disinvest. Number 1 फटाफट तुरंत. Number 2 at fair value. At what? Fair value. In that case we say that that investment is liquid. That investment is liquid. ठीक है? For instance, if we will go to the stock market का screen and open any popular stock so in that case the share price would be like this. Bid price, ask price. Bid price is suppose 740.2. Ask price is 740.4. Look at this gap. 740.2, 740.4. On a base of 740, the meager difference of 20 paisa is big or small? Small. 740 का बात हो रहा है, उस पर 20 पैसा का खर्चा लग भी जा रहा है. बहुत कम है ना, बिकॉज रियल लाइफ में तो कुछ खर्चे लगेंगे ही ना ट्रांजैक्शन करने में. ठीक है? तो इन दैट केस यहां पे इफ यू वांट टू बाय इमीडिएटली एट व्हाट प्राइस कैन यू बाय? 740.4. सम सेलर इज स्टैंडिंग, कोई खड़ा है बेचने के लिए. 740.4 अ सेलर इज रेडी टू सेल, यू कैन बाय. वो आस्क प्राइस था. क्या प्राइस था? आस्क पैसा कौन मांगता है? जो बेचता है. तो जो बेच रहा है वो 740.4 में बेचने तैयार है. ओके और जो खरीदने वाला है वो कितने में खरीदने तैयार है? 740.2. तो आप लोग में से किसी को भी खरीदना है, यू कैन बाय एट 740.4 तुरंत. अगर दुख होगा भी तो 20 पैसे का होगा. एंड इफ यू वांट टू सेल, यू कैन सेल एट व्हाट रेट? 740.2. तो अगर बाई चांस तुम्हारे टाइम पास चढ़ा कि चलो एक बार बाई करके सेल करते देखते कैसा होता है, ठीक है, तो इन दैट केस यू कैन बाय राइट नाउ एट 740.4 एंड सेल राइट नाउ एट व्हाट? 740.2. दिस राउंड ट्रिप विल कॉस्ट यू हाउ मच? 20 पैसे. ठीक है? पर होता है ना, समझ में तो आया. मैंने क्या होता है कि सपोज कोई कुछ क्लासेस करने के बाद अपने फोन पे ही ट्रेडिंग कुछ चालू कर देगा. ठीक है? और इन दैट केस वो क्या होगा? फर्स्ट टाइम बाई करेगा, फिर 2 मिनट बाद सेल करेगा. उसको 2 रुपया 4 रुपया का नुकसान होगा, पर क्या होगा? सेटिस्फैक्शन होगा, यार पहली बार. ठीक है? चलो सीखे तो सही. तो इन दैट केस लेट्स अंडरस्टैंड दैट वे ओनली. तो इन दैट केस पॉइंट 2 का लॉस, व्हाट आई वुड से इज दैट दिस इज अ लिक्विड स्टॉक और इलिक्विड स्टॉक. दिस इज अ लिक्विड स्टॉक. लिक्विड बिकॉज आप तुरंत ट्रेड कर पा रहे हो, तुरंत अभी राइट नाउ. आप रुकोगे नहीं. ठीक है? तो और एट द सेम टाइम यू आर एबल टू डू एट फेयर प्राइस ना. ठीक है? जो दाम चल रहा था उसी पे. गड़बड़ कहां होता है? जहां एक स्टॉक है जिसमें यहां पे चलेगा 230 और यहां पे चलेगा 690. दीज स्टॉक्स आर डेंजरस because if you want to buy right now you have to buy at what? 690. If you want to sell right now you can sell at what? 230. That's bad. So you know if you enter the stock, निकलते समय नानी याद आ जाएगा, है ना? या if you sell the stock and you want to buy it later on, बहुत प्रॉब्लम है इसमें एंटर करना, ऑफलोड करना. दिस इज लैक ऑफ लिक्विडिटी. तो लिक्विडिटी मतलब क्या? आप फटाफट कर सकते हो और फटाफट फेयर दाम पे कर सकते हो. तो इन दैट केस वी कॉल इट व्हाट? लिक्विड. The best example of an illiquid asset is real estate. What?
Real estate, properties. Property market is less liquid. So tell me something. There is a real estate company. There is a real estate company. Okay? Real estate company है जिसका स्टॉक बाजार में ट्रेड हो रहा है. उसके बजाय देयर इज अ रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी. एकदम अलग चीज हो गया. रियल एस्टेट कंपनी मतलब कंपनी विच इज डूइंग रियल एस्टेट बिजनेस. उसका शेयर बाजार में ट्रेड हो रहे. इफ यू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी यू बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनीज बिजनेस, ऑफ द कंपनीज एसेट्स एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स, एंड दैट बिजनेस इज डिपेंडेंट अपॉन रियल एस्टेट. ठीक है ना. इंस्टेड अगर तुमको रियल एस्टेट पे इतना ही मन आ रहा है तो रियल एस्टेट बाई कर लो. ठीक है. लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट दैट ये जो रियल एस्टेट है ये एग्जैक्टली वही रियल एस्टेट है जो ये रियल एस्टेट कंपनी के पास है. लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली कि रियल एस्टेट कंपनी सा जो जो प्रॉपर्टीज दे रखा है ना यहां वहां एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज आप अलग से बाई कर सकते हो. एंड वी आर अज्यूमिंग दैट यू आर अ सुपर रिच पर्सन बिकॉज इतना सारा प्रॉपर्टीज बाई करने का पैसा कहां से आएगा. ओके फर्स्ट वाला तो ठीक है, यू आर बाइंग अ शेयर 200 रुपया का. बट वो जो सेकंड पार्ट बोल रहा हूँ बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ. प्रॉपर्टी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री और स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. यू विल रिक्वायर बिलियंस ऑफ मनी टू बाय इट. लेट्स अज्यूम यू हैव इट. तो इन दैट केस अगर ऐसा है तो उस केस में रियल एस्टेट कंपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी दोनों में से अपने को माने जब वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का बात हो रहा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोनों में सेम या अलग, किस में ज्यादा? रियल एस्टेट में ज्यादा. बिकॉज अगर मैं रियल एस्टेट स्टॉक बाई करता हूं तो मेरे को पता है मैं 2 मिनट बाद बेच पाऊंगा. इफ आई बाई द स्टॉक एंड आई चेंज माई माइंड आफ्टर 2 minutes आई विल सेल इट. देयर इज नो इश्यू, इट्स ट्रेडेड. बट इफ आई बाई द प्रॉपर्टीज आई विल नॉट बी एबल टू सेल. आई विल गेट स्टक अप. अंडरस्टूड. इफ यू बाय अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, सपोज आपको पेंटिंग्स में इंटरेस्ट आ गया है कि यार तुमने सुना कोई अंकल खरीदे थे पेंटिंग 20 साल पहले और आज उस 20 साल के बाद उस पेंटिंग का दाम करोड़ों ही बेचे. ठीक है. तुमको भी लग गया सनक. ठीक है. तो इन दैट केस यू बाय अ पेंटिंग. द प्रॉब्लम इज दैट बाय तो कर लो पेंटिंग. ठीक है ना. अब उसको बेचने में प्रॉब्लम होगा तुमको. तो दैट्स लिक्विड और इलिक्विड. इलिक्विड. सो मन में जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सोचते हैं ना तो क्या होता है वो ज्यादा. बिकॉज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विल कंप्राइज ऑफ लिक्विडिटी प्रीमियम. क्या? लिक्विडिटी. यानी यहां पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सपोज 18% है. यहां पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा सर 18 प्लस एलपी. प्लस व्हाट? LP. What is LP? Liquidity premium. Liquidity premium is the premium for enjoying liquidity or for suffering liquidity. Sorry, suffering liquidity wrong word था. Suffering the lack of liquidity. Suffering the lack of liquidity. ठीक है ना. कि liquidity नहीं है सर मेरे को ज्यादा चाहिए तो I want 22%, otherwise I will not buy the property. तो property market में returns ज्यादा चाहिए होता है किसी को भी because of illiquid nature. Because of illiquid nature. ठीक है. तो ठीक मैं अपने आप डिफाइन कर दूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. मैच्योरिटी रिस्क. उसके लिए आई नीड सम हेल्प ऑफ योर्स. ये 0 है, ये 1 है. यहां पे 1000 खड़ा है. उस 1000 का प्रेजेंट वैल्यू यहां निकालना है. व्हाट इज द मैथ? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू व्हाट? 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस आर. 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस आर. ओके. इफ दिस इज नॉट ईयर 1, दिस इज ईयर 10. 10 साल बाद 1000 मिलने वाला है. आई नीड योर हेल्प प्लीज. 10 साल बाद 1000 मिलने वाला है तो प्रेजेंट वैल्यू इज 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर 10. 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस आर पावर 10. जनरली ऐसा होगा ही नहीं कोई अपने में से. बट अगर फिर भी कोई ऐसा होना जिसको बोले सब पता नहीं वो जो आप डिवाइड करते हैं ना वो नेचुरली समझ में नहीं आता. बाई चांस ऐसा हो जाए किसी के साथ, यू जस्ट रिक्वायर अ 1 minute का डाइवर्जन. इफ यू आर इन्वेस्टिंग एक्स राइट नाउ, आफ्टर 1 year you want x into 1 plus r. After 2 years x into 1 plus r into 1 plus r. After 10 years x into 1 plus r power what? 10. Because r तो एनुअल रिटर्न है तो आपको x के बदले 10 साल बाद क्या चाहिए? x into 1 plus r power 10 and that is equal to 1000. So what is x equal to? This goes down. I hope it's okay. जिनके नेचुरल था कोई इशू ही नहीं है. डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस. ठीक है. पर अगर कोई अटकता है कि सर डिवाइड समझ में नहीं आता है तो प्लीज इधर से सोच लीजिए. ठीक है ना. 1000 बाय 1 प्लस आर पावर 10. सही है. ठीक है. अब एक बार मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम को थोड़ा सा फ्लुएंटली बताने के लिए कैलकुलेटर का हेल्प लेते हैं. अपने कैलकुलेटर पे जा रहे हैं. सब जन कैलकुलेटर खोल लो. जिनके पास नहीं है वो लोग अगल बगल में अगर थोड़ा सा जस्ट शेयर कर पा रहे हैं माने देखने वाइज तो बेटर रहेगा.
Just 1 second. ओके, सो डाइवर्जन हो रहा है इनटू कैलकुलेटर. ओके, पे अटेंशन. सो कैलकुलेटर में जैसे नॉर्मल एडवांस्ड कैलकुलेटर्स में होता है, एवरी की इन द कैलकुलेटर हैज टू फंक्शंस, वन विच इज प्रिंटेड ऑन इट, द अदर विच इज प्रिंटेड अबव इट. जैसे 5, जैसे सपोज बेटर है, जैसे डेटा दिया हुआ है, सपोज ये आपका 7 नहीं, सपोज एक डेटा है, n के बगल में i बाय y दिखा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, n के बगल में i बाय y बाय y इंटरेस्ट रेट है. क्या है वो? इंटरेस्ट रेट. और उसके ऊपर क्या है? p बाय y. ओके, वो पीरियड्स पर ईयर है, जैसे वो सब होता है ना, कंपाउंडेड 4 टाइम्स अ ईयर, कंपाउंडेड 2 टाइम्स अ ईयर, सेमी एनुअली, वो सब के लिए. तो एवरी बटन हैज 2 फंक्शंस, वन इज ऑन इट, द अदर इज अबव इट. टू यूज द फंक्शन अबव इट यू हैव टू प्रेस व्हाट? सेकंड. ठीक है, यू हैव टू प्रेस व्हाट? सेकंड. फॉर एग्जांपल कोई बताना तो इजी फिगर पूछता हूं, क्या पता, बिकॉज +2 में किया इसलिए. व्हाट इज 5p2? 5p2. यस प्लीज, कोई मैंने ग्रीक लैटिन नहीं बोला है, जिनको आता है क्या हर्ज बताने में. 5p2. 5p2 परमुटेशन का बात हो रही है ना, तो 5p2 इज द परमुटेशन ऑफ 5 डिफरेंट थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम. ठीक है, तो व्हाट फॉर्मूला डू यू अप्लाई एट +2? फॉर्मूला बोलो मेरे को. फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन, ये परमुटेशन है. n-r, तो वही तो फैक्टोरियल 3 होगा ना. npr इज व्हाट? फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n-r. ओके, वैसे कोई बैठे हुए चिंता नहीं करें अभी, ओ ये सब है क्या? नहीं है ये सब, डोंट वरी, बहुत इजी है. ठीक है, बट ऐसे ही मैं तो बिकॉज आई एम एड्रेसिंग एन ऑडियंस जो करके आए हुए होंगे, तो आई जस्ट थॉट टू आस्क. तो ये 5 फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 3, तो दिस इज एक्चुअली 5 into 4. व्हाट इज इट? 5 into 4, बिकॉज फैक्टोरियल 3 तो कट ही जाएगा. व्हाट इज इट? 20. कैलसी से निकाले अपने एक बार, जिससे सेकेंड फंक्शन का ऑपरेट. तो कैलसी में एनपीआर दिखा क्या कहीं पे? परमुटेशन कहां दिखा? माइनस वाले बटन के ऊपर लोगों को एनपीआर दिखा है, बाकी लोग को भी दिख गया होगा. ठीक है, तो इन दैट केस उससे निकालते हैं अपने. चलो करते हैं 5, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद वो माइनस वाला बटन, और उसके बाद 2 इक्वल टू 20. ठीक है, 5p2 इज व्हाट? 20. व्हाट वी डिड, एक बार वापस से करें. 5 सेकेंड, माइनस वाला बटन, 2 इक्वल टू 20. इज इट ओके? तो सेकेंड के बाद वो जब एनपीआर ऑपरेट किए तो वो एक्शन में आ गया. खैर, डाइवर्ट करता हूं. सुनना, 1000 को अपने एक साल पीछे टाने थे 8% से, और 925 आंसर आया था, याद है क्या? 1000 को 8% से पुल किए थे. व्हाट वाज 1000? पीवी और एफवी? एफवी. सर्च फॉर द एफवी का बटन देखा आपको, डिवाइड के ऊपर एफवी, और पीवी का बटन उसके बगल में है. पीवी बगल के बगल में पीवी. इंटरेस्ट रेट का बटन पीवी के बगल में है, और एन का बटन उसके बगल में है. यानी वो जो रो है, थर्ड वाला रो, वो पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रो है. दैट थर्ड वाला रो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रो है. उस पर जो पीएमटी अभी तक किए नहीं, वो एन्यूटी होता है. क्या होता है? एन्यूटी. भी नाम सुना होगा +2 में डेफिनेटली. ठीक है ना, तो वो उसका रो है. इसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले, ठीक है, एफबी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? CLR TVM. क्या लिखा हुआ है? CLR TVM. मतलब अगर आपने कोई पुराना कैलकुलेशन किया होगा तो प्लीज उसको हटा दीजिए. तो एक बार सेकेंड और FB प्रेस करो. सेकेंड FB. यू विल फील लाइक कुछ हुआ नहीं, पर बेसिकली क्या अंदर में कुछ हुआ था तो हट गया. ठीक है, तो इन दैट केस 1000 प्रेस करते. 1000 FB. 1000 के बाद FB कर दिए. उसके बाद 1N, बिकॉज एक साल था आपने उस सब में. 1N एक साल का था वो. 1N. उसके बाद 8I by Y. 8I by Y. उसके बाद एकदम लेफ्ट टॉप में CPT दिख रहा है. CPT माने कंप्यूट. तो CPT PV.
सीपीटी पीवी, पीवी क्या आया 925.92, ये आया ना, माइनस में आया, माइनस मतलब बोलना चाह रहा है तेरे को 1000 चाहिए तो 925 पॉकेट से निकाल, इनफ्लो आउटफ्लो ना, यू सेड 1000 पॉजिटिव, तो इन दैट केस पीवी तो नेगेटिव आएगा, टू गेट 1000 यू हैव टू पे 925, आप 1000 को नेगेटिव डालते तो इसका मतलब था 1000 चुकाना है, तो अभी कितना लें, तो 925 लेंगे, तो कैलकुलेटर तो ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं। सीईसी में आओ, सीईसी एकदम लेफ्ट बॉटम में जो है सीईसी, आप लोग के कैलकुलेटर में कितना डेसिमल प्लेस आया हुआ है, 2, सब जन के 2 आया हुआ है, किसी के 3-4 आया हुआ होगा। डेसिमल प्लेस चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू मल्टीपल चॉइस, किसी मल्टीपल चॉइस आंसर में डेसिमल प्लेस ज्यादा चाहिए और जिसमें कम चाहिए उस पर क्यों गंदा रखे स्क्रीन को, तो अकॉर्डिंगली डेसिमल चेंज करने के लिए वी गो टू सेकेंड फॉर्मेट, सेकेंड फॉर्मेट का बटन एकदम नीचे है डेसिमल का, देखा सेकेंड फॉर्मेट, होप सबको दिख रहा होगा, जिनके पास भी कैल्सी नहीं है वो लोग थोड़ा सा अगल बगल में देखते हैं, वैसे बोर्ड पे भी दिख रही है सेकेंड फॉर्मेट, तो मेरा डेसिमल प्लेस 4 है, ठीक है ना, तो इन दैट केस आई कैन चेंज, लेट्स चेंज इट टू 3, आप लोग 3 चेंज कर लो, 2 था ना आपका 3, उसके बाद एंटर, एंटर एकदम ऊपर में है, एंटर ऊपर में है ना, सीईसी, सीईसी अब क्या है 0.000, 3 डेसिमल प्लेस पे सारे सम होंगे, तो हाउ डू यू चेंज द डेसिमल प्लेस, सेकेंड फॉर्मेट, सेकेंड फॉर्मेट, ठीक है ना। अब मेरे हेल्प के बिना अपने आप प्लीज